chapter 5th, Chemistry in Everyday Life, part 1st. From the RBSc board point of view, this chapter is most important because the total marks of this chapter in examination 2021 is 9. That's why it is most important. And the topics which are included in this chapter are acids, bases and salts. Definitions of acids and bases, pH scale, importance of pH in daily life, some useful compounds such as sodium chloride, sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris, and our last topic is soap and detergent. Then in this chapter we study all these topics one by one with all details. So let's start our chapter. In this chapter, we will study about chemicals which is involved in our daily life. We see that chemicals are widely spread in every field of our life, such as in our kitchen for cooking, we use baking soda, baking powder, and we use detergent for washing clothes, and we use soap and the ink which is present in this marker, and fertilizers, and there are many examples of chemicals which is present in our daily life. And now in our food some sour and bitter taste are present, and it is due to the presence of acids and bases. Then we will discuss about what is acids and what is bases. And now our first topic is acids. The term acid is derived from Latin word acidus, which means sour. Acids are sour in taste. Acids converts blue litmus to red. That means कि जब हम सॉल्यूशन को लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, तब अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो जो लिटमस पेपर है उसका जो ब्लू कलर है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स. फर्स्ट वन इज मिनरल एसिड्स एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स. द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर H2SO4, HCl, HNO3, etc. And the examples of organic acids are citric acid, tartaric acid, acetic acid, ascorbic acid, etc. Organic acids are found naturally in plants and animals. Now there are some examples of organic acid which is found in different substances, such as acetic acid are found in vinegar. Tartaric acid are found in tamarind. And ascorbic acid are found in orange, and formic acid are found in sting of red ant. अब जो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कौन से सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन है ना काफी बार क्या होता है एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है. Now we come on our next topic, which is bases. Next is bases. Bases are bitter in taste. They convert red litmus to blue solution. जब हम क्या करते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन को लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करते हैं कि जो उसका नेचर है वो क्या है, तो अगर लिटमस का कलर अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. एंड इफ the color of litmus is changed from blue to red, then our solution is acidic in nature. They are soapy to touch, and the examples of bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, aluminum hydroxide, etc. These are the examples of bases. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एसिड्स एंड बेसिस का सिर्फ एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है सिर्फ उसको डिस्कस किया है. अब एक्चुअली में जो डेफिनेशंस है एसिड्स की, बेसिस की, उनको हम अपने अगले जो ये नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस, उनके अंदर प्रॉपर्ली पूरी डिटेल्स के साथ में डिस्कस करेंगे. ओके, उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज लिटमस सॉल्यूशन.
इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम किस लिए यूज करते हैं, जो सॉल्यूशंस का नेचर जो होता है कि वो एसिडिक है और बेसिक है, उसको चेक करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ओके, ये हमें कहां से ऑब्टेन होता है, लाइकेन से। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगई। ओके, तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है एल्गी एंड फंगाई के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन। When solution is neutral in nature, its color is purple. अब हमने ये तो देखा कि जब क्या हो, हमारा जो सॉल्यूशन अगर एसिडिक हो तो जो लिटमस है वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है, अगर बेसिक हो तो वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है। बट व्हाट हैपन इफ अवर सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक? Then if our solution is neutral in nature, then the color of litmus solution is purple. There are some natural indicators. For example, red cabbage leaves, turmeric, colored petals of flowers such as hydrangea, petunia and geranium. That's clear? Then these are the natural indicators. Now we come on our next topic, which is definitions of acids and bases. अब जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने जो भी डिस्कवरीज की थी उन्होंने उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज दी थी एसिड्स एंड बेसिस के रिलेटेड। नाउ इन विच आवर फर्स्ट थ्योरी इज अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस proposed the concepts of acids and bases in 1887. Okay, then according to Arrhenius theory, the substances which give hydrogen ion on hydrolysis in aqueous solution is called acids. तो जो अरेनियस ने जो भी अपनी स्टडीज की थी एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर, तो जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि जो भी सब्सटेंसेस हाइड्रोलाइसिस करने पे हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हो उन सब्सटेंसेस को हमने क्या कहा है, एसिड्स। दैट्स क्लियर। जो सब्सटेंसेस हाइड्रोलाइसिस करने पे H+ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हो उन सब्सटेंसेस को अरेनियस ने क्या कहा है, एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। इट इज अ सब्सटेंस। अभी हमें पता नहीं है कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज एसिड और बेस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस मीनिंग जब हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, तब जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड का जो ये एक मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर मतलब ब्रेक हो जाएगा, इन H+ आयन एंड इन Cl- आयन। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ एसिड। दैट्स क्लियर। वन मोर एग्जांपल, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। इसका भी जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तब जो ये H2SO4 है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन एंड SO4 2- आयन। दैट्स क्लियर। देन इट इज जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे भी हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसिड। वन मोर एग्जांपल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का भी हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या प्रोड्यूस होता है, H+ आयन एंड CH3COO- आयन। ओके, यहां से भी हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसिड। दैट क्लियर। मतलब जो अरेनियस जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड्स का जो मीनिंग है, दैट मीन्स जो डेफिनेशन एसिड की वो क्या होती है, वो यहाँ से आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दो टर्म्स होती है एसिड्स के रिलेटेड। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द सेकेंड वन इज वीक एसिड। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि एसिड्स, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका मीनिंग क्या होता है कि द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नाउन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पे जो एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हो उनको हमने क्या कहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड,
hydrogen sulfate, HNO3, hydrogen nitrate, etc. Okay, these are the examples of strong acid. And the next one is weak acid. Then the acid which are not completely ionized on hydrolysis, a few amount of acids are remain as non-ionized form. Okay, then such type of acids are known as weak acids. And the examples of weak acids are acetic acid, carbonic acid, etc. Okay, these are the examples of weak acid. तो मतलब कि जिन एसिड्स का हम आयोनाइजेशन कर, जिस एसिड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हो तो वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हो दैट मींस वो क्या है, वीक एसिड. एंड द नेक्स्ट वन इज Arrhenius theory for bases. Then the substances which give hydroxyl ion, that means OH minus ion on hydrolysis in aqueous solution are called bases. मतलब कि जो सब्सटेंसेस हाइड्रोलाइसिस करने पे हाइड्रोक्सिल आयन, दैट मीन्स OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हो, उन सब्सटेंसेस को अरेनियस ने क्या कहा है, बेसिस. दैट्स क्लियर. मतलब जो सब्सटेंसेस H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो एसिड्स, एंड जो सब्सटेंसेस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे वो सब्सटेंसेस क्या है, बेसिस. एग्जांपल्स ऑफ बेसिस. फर्स्ट एग्जांपल इज sodium hydroxide. Then on hydrolysis of sodium hydroxide, it produce Na plus OH minus hydroxyl ion. That means सोडियम हाइड्रोक्सिल, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका हाइड्रोलाइसिस करने पे हम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH माइनस आयन. दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ बेसिस. सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या ऑब्टेन आ रहा है, K प्लस आयन एंड OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन. दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेसिस. वैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें क्या ऑब्टेन होगा, फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम आयन एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोक्सिल आयन. दैट मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेसिस. तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो सब्सटेंसेस OH माइनस को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पे वो सब्सटेंसेस क्या है, बेसिस, एंड जो सब्सटेंसेस हाइड्रोलाइसिस करने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंसेस क्या है, एसिड्स. दैट्स क्लियर. एंड both the definitions of acids and bases are according to Arrhenius theory. Okay, that's clear. Now here two terms are related to bases. First one is strong base and second one is weak base. Then similarly, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के लिए, सेम वैसे ही व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज वीक, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट इज वीक बेस. देन द स्ट्रॉन्ग बेस आर नाउन एज the substances which completely ionized on hydrolysis are known as strong bases, and weak bases, the bases which are not completely ionized on hydrolysis are known as weak bases. That's clear. Then the examples of strong base are sodium hydroxide, potassium hydroxide, and the example of weak base is NH4OH, ammonium hydroxide. Okay. And the next one is the concept of Arrhenius is useful for those acids and bases which have hydrogen and hydroxyl ions respectively. अब जो ये Arrhenius का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सिर्फ वहीं तक यूजफुल था जहां तक कि एसिड्स के पास में क्या हो, हाइड्रोक्साइड, और बेसिस के पास में क्या हो, एसिड्स के पास में क्या हो, हाइड्रोजन आयन, और बेसिस के पास में क्या हो, हाइड्रोक्सिल आयन. ये तभी तक यूजफुल था. बट through this concept, the nature of hydrogen-less acids and hydroxyl-less bases does not clarify. लेकिन अगर एसिड्स एंड बेसिस के पास में जो हाइड्रोजन एंड जो हाइड्रोक्सिल आयन है, अगर उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो, लेस हो, तब जो ये कॉन्सेप्ट है वो एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन को क्लैरिफाई नहीं करता. दैट्स क्लियर.
इसी वजह से जो नेक्स्ट जो और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी क्या की थी, जो भी स्टडीज की थी एसिड एंड बेसिस सब्सटेंसेस पे, और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया था। देन सेकंड वन इज ब्रोंस्टेड-लाउवरी कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय अ डेनिश केमिस्ट जॉन्स ब्रोंस्टेड एंड अ फ्रेंच केमिस्ट थॉमस एम लाउरी। Then according to Bronsted-Lowry concept, acids are proton donor and bases are proton acceptor. Okay, first of all proton. अब यहाँ पे जो ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट में जो प्रोटॉन की बात हो रही है उसका मीनिंग क्या है, तो जो सबसे पहले प्रोटॉन को समझने से पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। ओके, दिस इज H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, दैट्स क्लियर। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एटम में 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है उसका एक एटम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे मेरे को बताओ, अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, 1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। ओके, तो इसी वजह से अब यहाँ पे जो ये आयन है हाइड्रोजन आयन, इसके पास क्या है, ओनली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। इसी वजह से जो H+ आयन को ही हमने क्या कहा है, प्रोटॉन। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स उन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि क्या डोनेट करते हो, प्रोटॉन। मतलब कि जो H+ आयन को डोनेट करेगा वो क्या है, एसिड्स, एंड जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होंगे, बेसिस। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो भी ये दोनों डेफिनेशन है उसको हम एक एग्जांपल से क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, देन फॉर दिस डेफिनेशन आवर फर्स्ट एग्जांपल इज CH3COH एसिटिक एसिड प्लस H2। जब हमने एसिटिक एसिड के रिएक्शन H2O वाटर के साथ में करवाई तब हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, CH3CO minus plus H3O plus. Okay, that's clear. On the reaction of acetic acid and water, CH3CO minus ion and H3O plus ion is produced. अब यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जर्व करो इस रिएक्शन को। यहाँ पे क्या हुआ, एसिटिक एसिड ने क्या किया, अपना जो भी ये H+ जो H था हाइड्रोजन, उसको क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद में उसने क्या प्रोड्यूस किया, मतलब कि CH3CO माइनस आयन, इस आयन अपने आयन नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ ये प्रोड्यूस हुआ क्यों, मतलब रीजन क्या था, क्योंकि जो इसका H+ आयन था, जो प्रोटॉन था, वो क्या हो गया, लॉस हो गया। इस वजह से जो पीछे अब क्या बच गया, इसका नेगेटिव आयन बच गया। अब यहाँ पे जो ये H+ आयन, जो ये प्रोटॉन क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उसने किसके साथ में रिएक्शन कर ली, इस H2O मॉलिक्यूल के साथ में, और H2O मॉलिक्यूल के साथ में इसने रिएक्ट करके कौन सा आयन प्रोड्यूस कर दिया, हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे CH3CO ने क्या किया, डोनेट किया प्रोटॉन को, तो CH3COH क्या हो गया, एसिड, दैट मीन एसिटिक एसिड, और H2O वाटर, उसने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे है ना, जो ये H2O मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ बेस। तो यहाँ पे हमारा जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, बेस। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे समझ में आ गया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टेड। ओके, देन वन मोर एग्जांपल,
H2SO4 प्लस NH3। जब हम हाइड्रोजन सल्फेट जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, अमोनिया के साथ में, तब जो प्रोडक्ट में हमें ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, HSO4 माइनस आयन प्लस NH4 प्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसने क्या किया, अपने नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस किया। ये नेगेटिव आयन क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, अपने जो एक H प्लस आयन है उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने की वजह से उसके पास में रिमेन में क्या बच गया, जो उसका नेगेटिव आयन था वो, विच इज HSO4 माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया, दैट मीन्स प्रोटॉन डोनर, एंड द प्रोटॉन डोनर आर नाउन एज एसिड्स। दैट्स क्लियर। और यहाँ पे जो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल था उसने क्या किया, उसने अमोनिया के एक मॉलिक्यूल ने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या प्रोड्यूस किया, NH4 आयन। और इसकी वजह से जो NH3 अमोनिया है वो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट मीन्स बेस। ओके, तो इस जो सेकंड रिएक्शन है हमारे, इसके अंदर क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, एसिड, एंड जो अमोनिया है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ बेस। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। तो जब ब्रॉन्स्टन लाउरी साइंटिस्ट ने एसिड्स एंड बेसिस के रिलेटेड जब थ्योरीज प्रपोज की थी, तब उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के भी कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। देन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, जब रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब एक एसिड क्या करता है, अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो हमने उसको क्या कहा था, एसिड, और जो कि क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, हमने उसको क्या कहा था, बेस। दैट मीन्स एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे जब ब्रॉन्स्टन लाउरी एसिड क्या करता है, अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है, तब वो एक आयन को प्रोड्यूस करता है, और जो स्पीसीज प्रोड्यूस होती है उसी स्पीसीज को हमने क्या कहा है, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जिस स्पीसीज को फॉर्म करता है उस स्पीसीज को हमने क्या कहा है, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कि एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉन्जुगेट एसिड। यहां तक की बात क्लियर है। मतलब ब्रॉन्स्टन लाउरी एसिड अपने प्रोटॉन को लॉस करके जिस स्पीसीज को फॉर्म करेगा उस स्पीसीज को क्या कहा है, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस, ब्रॉन्स्टन लाउरी बेस, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जिस स्पीसीज को फॉर्म करेगा उसको क्या कहा है, कॉन्जुगेट एसिड। दैट्स क्लियर। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। वन मोर एग्जांपल इज ऑफ H2O प्लस NH3। हमने किसकी रिएक्शन करवाई, वाटर की अमोनिया के साथ में। तब जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, NH4 प्लस OH माइनस आयन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने क्या किया, अपने एक प्रोटॉन को डोनेट किया और क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे क्या, जो H2O मॉलिक्यूल है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज एन एसिड, और जो OH माइनस है वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ओके। और यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और क्या प्रोड्यूस किया, NH4 प्लस आयन। तो यहाँ पे जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ बेस, और जिस स्पीसीज को उसने फॉर्म किया है वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। ओके, दैट्स क्लियर। H2O ने अपने प्रोटॉन को लॉस किया, और तो फिर जो H2O जो एज एन एसिड बिहेव कर रहा था उसने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट बेस, और अमोनिया ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो जो अमोनिया एज अ बेस बिहेव कर रहा था उसने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो H2O एंड OH माइनस है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और जो NH3 एंड NH4 प्लस है
वो क्या है, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। दैट्स क्लियर। तो ये था कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट थ्योरी इज लेविस कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक दो थ्योरी को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज अर्रेनियस थ्योरी एंड सेकेंड वन इज ब्रोंस्टेड-लावरी कॉन्सेप्ट। तो आवर थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। ओके, अब जो लेविस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या एक्सेप्ट करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मीन्स जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स के वो कितने हैं, 2। वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, एसिड्स। एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, बेसिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ओके, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को साथ में डोनेट कर रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ में एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स क्लियर। Generally, the compounds having electron deficiency or those compounds which have incomplete octet are called Lewis acids. अब जो Lewis acids हैं वो जनरली कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास में क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या फिर वो कंपाउंड्स जिनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो, इनकम्प्लीट हो, मतलब कि जो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर इनकम्प्लीट हो तो वो कंपाउंड्स कैसे बिहेव करेंगे, एज अ Lewis acid. And electron rich or the compounds having lone pair of electrons act as Lewis base. और जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि उनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हो, या फिर वो कंपाउंड्स जिनके पास में क्या प्रेजेंट हो, लॉन पेयर, तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एज द Lewis base. एग्जाम्पल्स ऑफ Lewis एसिड, तो जो Lewis एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे BF3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, एटसेट्रा। ओके, तो ये सारे क्या हैं, Lewis एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि BF3 है, यहाँ पे जो बी बोरोन है इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5। ओके, इसकी जो फर्स्ट शेल है, इसकी जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और इसकी जो सेकेंड सेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 8, लेकिन इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसके पास तो कितने, नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तब जब वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ में, और जब वो 3 फ्लोरीन के साथ में और बॉन्ड बना लेगा तब इसके पास और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 और आ जाएंगे। फिर भी इसके पास अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए। जो उसको आउटरमोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायरमेंट है, टोटल नंबर ऑफ 8, लेकिन आउटरमोस्ट में तो कितने इसके पास, 6 ही है। 3 तो उसके खुद के थे और 3 इलेक्ट्रॉन उसने किसके साथ में शेयर किए थे, फ्लोरीन के साथ में। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है। अगर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उसको क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसी वजह से जो BF3 है उसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसी वजह से वो कैसे बिहेव करता है, एज अ Lewis एसिड। और उसी तरीके से बाकी सारे एग्जांपल्स भी क्या करते हैं, एज अ Lewis एसिड बिहेव करते हैं। दैट्स क्लियर। और वैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं हम किसकी, अमोनिया की, NH3, तो जो NH3 है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 5। ओके, अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, और जब इसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तब इसके पास में और कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्लस 3 8। अभी इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं,
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन इसके पास में क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट मीन्स जो ये स्पीसीज है कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसी वजह से जो ये अमोनिया है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ लेविस बेस। और इसी तरीके से जो बाकी सारे एग्जांपल्स भी हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ लेविस बेस। And with this topic, Lewis concept, our part first of this chapter is now completed. Thank you.